Hello students, myself Dr. Jyoti Singla from Department of Economics, GGDSD College, Khedi Gurna, Banood. Today we will discuss the topic of investment multiplier. Investment has great significance from an individual and from economy point of view. An individual invests to earn the profit or to increase income, and government invest in the economy to raise the level of employment, which ultimately increase the level of income in the economy. But the amount at which the income increases with increase in investment is not same. It is many times more than increase in investment. But how many times income will increase with increase in investment is studied under investment multiplier. It tells us how many times investment will multiply and leads to increase in income. So in today's session, we will discuss the introduction of investment multiplier, its meaning, MPC and MPS, relation between multiplier and MPC, working of multiplier in both actions, that is in forward action and in backward action, time lags in income generation, and there are also some sample questions in this PPT. So, first of all, we will start with the introduction of investment multiplier. The concept of investment multiplier was discussed by the famous economist Professor Keynes in his book The General Theory of Employment, Interest and Money in 1936. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम. मल्टीप्लायर हमें ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज करने से इनकम कितने टाइम्स इंक्रीज करती है. सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर टेल्स अस व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, income will increase by k times the increase in investment. Here is mathematical formula. Delta y is equal to k delta I. So here k is multiplier, delta y is increase in income, delta I is increase in investment. So इसका मतलब ये है कि इनकम के टाइम्स इंक्रीज करती है इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से. और के क्या है? के इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. यहाँ पे एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. सपोज एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹4,000 crores in an economy generates an additional income of ₹16,000 crores. The value of multiplier in this case will be, इसमें हमें क्या दिया हुआ है? इसमें हमें डेल्टा आई दिया है दैट इज 4,000, डेल्टा वाई दिया हुआ है 16,000. इसका मतलब है कि 4,000 इन्वेस्टमेंट होने से इनकम 16,000 हो जाती है. तो जो हमने पीछे फॉर्मूला स्टडी किया है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन delta I. So here delta y is 16,000 and delta I is 4,000. So the value of k is 4. It means income increased 4 times with a single unit increase in investment. So इसका मतलब है कि इनकम 4 गुना बढ़ती है. अगर इन्वेस्टमेंट 4,000 है तो इनकम कितनी होगी? 16,000. और इनकम जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर गई. तो वैल्यू ऑफ के इज 4. मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एमपीसी को समझना पड़ेगा. एमपीसी क्या है? एमपीसी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू
consume, which is the ratio between change in consumption to change in income. इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन कितनी चेंज होती है, जो हमें ये बताए उसको हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं. सो यहाँ पे भी मेरे पास एक एग्जांपल है. इनकम इज 100 एंड कंजम्पशन इज 80. सो जब इनकम 100 से बढ़ के 200 हो जाती है तो कंजम्पशन 80 से बढ़ के 120 हो जाती है. So delta y is 100 and delta c is 40. So the value of MPC is 40 upon 100, that is 0.4. जो MPC की वैल्यू है वो हमेशा ही 0 to 1 लाई करती है. Similarly is the case of MPS. MPS क्या है? It is the ratio between change in saving to change in income. इसका मतलब है कि इनकम के चेंज होने से सेविंग कितनी चेंज होती है, दैट इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई. जब इनकम 100 है तो कंजम्पशन 80 है, तो सेविंग कितनी हुई 20. इसका मतलब 100 इनकम में से 80 रुपीज कंज्यूम किए जा रहे हैं और 20 रुपीज सेव किए जा रहे हैं. जब इनकम 100 से बढ़ के 200 हो जाती है तो कंजम्पशन 80 से बढ़ के 120 हो जाती है. दैट मीन्स नाउ सेविंग इज 80. सो डेल्टा वाई इज 100 एंड डेल्टा एस इज 60. सो एमपीएस इज 0.6. हमने एमपीसी को इसलिए स्टडी किया है क्योंकि हमने मल्टीप्लायर और एमपीसी में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना है. सो हमें ये कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई और एमपीसी में क्या रिलेशन है. सो देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. हायर द एमपीसी, ग्रेटर इज द साइज ऑफ मल्टीप्लायर. इसका मतलब है कि एमपीसी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मल्टीप्लायर का साइज भी उतना ही ज्यादा होगा. ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में. K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी. तो हमने इस फॉर्मूला को डेरिवेट करना है. कैसे करेंगे हम इसको? We know delta y is equal to delta c plus delta s. मतलब जब इनकम इंक्रीज होती है तो उससे या तो कंजम्पशन इंक्रीज करेगी या सेविंग इंक्रीज करेगी. पर अगर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम जनरेट करना है तो सारी की सारी सेविंग को इन्वेस्ट करना पड़ता है. सो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा आई. सो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? हम डेल्टा एस की जगह पे डेल्टा वाई लिखेंगे. सो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई? डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई. अब हमने क्या करना है? दोनों साइड्स को डेल्टा वाई के साथ डिवाइड करना है. सो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई. तो हमारे पास क्या बन गया? 1 इज इक्वल टू एम पी सी प्लस 1 बाय के. सो 1 बाय के कैसे आया? हमने अभी पीछे फॉर्मूला किया था कि जो के है वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई के इक्वल होता है. पर यहाँ हमारे पास क्या है? डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई. सो ये क्या हो गया? ये रेसिप्रोकल हो गया. किसका? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का. इसलिए हमने इस यहाँ पे क्या लिख दिया? 1 बाय के. तो बाय मैथमेटिकल डेरिवेशंस हमारे पास क्या आ गया? 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1 बाय के. के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी. यही हमने प्रूव करना था.
कि जो k है वो 1/1 माइनस MPC के इक्वल होता है। हम इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 1/MPS। जो 1 माइनस MPC है वो MPS के इक्वल होता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 1/MPS। जो MPC और MPS का एडिशन होता है वो 1 के इक्वल होता है, इसलिए 1 माइनस MPC MPS के इक्वल होता है। देखो जैसे हमने कहा है कि देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और उनसे मल्टीप्लायर की वैल्यू को डिराइव किया गया है। सो जब MPC 0 है तो हमने इस फॉर्मूला में पुट करके मल्टीप्लायर की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। मल्टीप्लायर जब MPC 0 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आती है, 1। जैसे जैसे हम MPC की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। जब MPC की वैल्यू 0.2 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है, 1.25। सिमिलरली जब MPC की वैल्यू 0.4 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है, 1.67। जो MPC की वैल्यू है वो 0 to 1 लाई करती है। सिमिलरली जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो भी 1 to इंफिनिटी लाई करती है। अब हमने करना है वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टीप्लायर इज अ टू एज्ड स्वॉर्ड, इट विल कट फॉर यू एंड अगेंस्ट यू। इसका मतलब है कि जो मल्टीप्लायर है वो दोनों डायरेक्शंस में काम करता है, फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन। फॉरवर्ड एक्शन का मतलब है कि जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाती है तो उससे इनकम मैनी टाइम्स मोर इंक्रीज होती है। बैकवर्ड एक्शन का क्या मतलब है कि जब इकोनॉमी में डिसइन्वेस्टमेंट की जाती है तो उससे इनकम मैनी टाइम्स मोर डिक्लाइन होती है। सो मल्टीप्लायर इज अ टू एज्ड स्वॉर्ड, इट विल कट फॉर यू and against you. Forward action of multiplier indicates that as a result of increase in initial investment, there is several times more increase in final income. यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाई है, OX एक्सिस पे हमने इनकम ली है, OY एक्सिस पे हमने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ली है। AD एग्रीगेट डिमांड कर्व है, जहां सबसे पहले इकोनॉमी में कंजम्पशन का लेवल कितना है, 100, और इनकम का लेवल भी 100 है। पर जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की जाती है 100 करोड़ की तो उससे जो इक्विलिब्रियम है वो E1 पे शिफ्ट कर गया है, E से E1 पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर गया है, जहां पे इनकम का लेवल कितना है, 300। मतलब इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ इंक्रीज करने से इकोनॉमी में 200 करोड़ इनकम जनरेट हुई है। तो इसमें वैल्यू कितनी आ गई मल्टीप्लायर की, 2। वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 2। सो ये क्या है, ये है फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। सिमिलरली बैकवर्ड एक्शन, बैकवर्ड एक्शन से हमें क्या पता चलता है कि अगर इकोनॉमी में डिसइन्वेस्टमेंट होती है तो उससे इनकम मैनी टाइम्स मोर डिक्रीज करती है। सो इनिशियली इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम जो था वो था E पे, जहां पे इनकम का लेवल है 300। पर जब 100 करोड़ की डिसइन्वेस्टमेंट की गई तो इक्विलिब्रियम लेवल कहां पे आ गया, E1 पे, जहां पे इनकम कितनी है, 100। इसका मतलब 200 करोड़ जो इनकम है वो डिक्लाइन कर गई। सो मतलब जो इनकम है वो 2 टाइम्स डिक्रीज कर गई है। सो हियर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 2। सो मल्टीप्लायर वर्क्स इन बोथ एक्शंस, इन फॉरवर्ड एक्शन एंड इन बैकवर्ड एक्शन। टाइम लैग्स इन इनकम जनरेशन, अब इसका क्या मतलब है, हमने जो पीछे पढ़ा है हमने जस्ट इतना पढ़ा है कि जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उससे इनकम
मैनी टाइम्स मोर इंक्रीज करती है, पर हमने उसमें ये नहीं बताया कि कितने लैग्स में होगा, ये कितना टाइम पीरियड लगेगा, किस फेज में कितनी इनकम बढ़ेगी और एंड में कितनी इनकम जो है वो जनरेट हो जाएगी। तो ये सारा कुछ हम टाइम लैग्स इन इनकम जनरेशन में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि इकोनॉमी में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 100 करोड़ की है और एमपीसी की जो वैल्यू है वो 0.5 है। सो यहाँ पे जीरो राउंड में क्या है कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हुई है 100 करोड़ की। जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हुई है 100 करोड़ की, कोई मशीन परचेज की गई है या कोई बिल्डिंग बाय की गई है या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉयमेंट दी गई है, तो इससे क्या होता है, इससे एक जो बंदा खर्च कर रहा है वो दूसरे पर्सन की इनकम बन जाती है। तो जीरो राउंड में क्या होता है, जब 100 करोड़ इन्वेस्ट किए गए इकोनॉमी में तो 100 करोड़ ही इनकम जनरेट हुई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। तो यहाँ पे हमने एमपीसी की वैल्यू 0.5 ली है, तो इसका मतलब है इन 100 करोड़ में से 50 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं और 50 करोड़ जो हैं वो सेव किए जा रहे हैं। सो नेक्स्ट राउंड में क्या होगा, जो 50 करोड़ कंज्यूम किए गए हैं वो अदर पर्सन्स की इनकम बन जाएगी। 50 करोड़ जो है वो अदर पर्सन की इनकम बन गई, तो उसमें से 25 करोड़ को खर्च कर लिया गया और 25 करोड़ को सेव कर लिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एमपीसी की जो वैल्यू है वो 0.5 है। सिमिलरली जो 25 करोड़ खर्च किए गए वो नेक्स्ट राउंड में फर्दर किसी और पर्सन की इनकम बन गए हैं। तो सिमिलरली ये प्रोसेस जो है ये चलता रहेगा। अब 25 करोड़ में से 12.5 करोड़ कंज्यूम किए जाएंगे और 12.5 करोड़ सेव किए जाएंगे। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक इकोनॉमी में इनकम का जो इंक्रीज है वो 200 करोड़ नहीं हो जाता। ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एमपीसी की वैल्यू है वो 0.5 दी हुई है। जब एमपीसी की वैल्यू 0.5 होती है तो के की वैल्यू 2 आती है, मतलब 100 करोड़ इनकम इन्वेस्टमेंट के होने से जो इनकम है वो 200 करोड़ जनरेट होगी। तो ये प्रोसेस जो है ये तब तक चलता रहेगा जब तक इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 टाइम, जो इनकम है वो 2 टाइम्स नहीं हो जाती। सो ये प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप करेगा। सो दिस इज टाइम लैग्स इन इनकम जनरेशन। नाउ देयर आर सैम्पल क्वेश्चंस फॉर यू। सॉल्व these questions and revise the whole topic. Let's stay connected us at www.ggdsdkhedigurna.ac.in. Thank you.